नमस्कार। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट 2007 कई नई उम्मीदों के साथ दस्तक देने को तैयार है और हम अपने इस विशेष कार्यक्रम के जरिए बजट के हर पहलू के पड़ताल की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये जानने की कर रहे हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकल कर आने वाला है। देश भर में विकास की तमाम योजनाओं का दारोमदार काफी हद तक इस बात पर टिका होता है कि सरकारी खजाने में कुल जमा राशि है कितनी। और बजट का ध्यान आते ही हर आम खास की नजर इस बात पर होती है कि आने वाला बजट उनके जेब के लिए कितनी राहत लेकर आता है। मैं हूं अजय मिश्र और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी ईशान रसल। Good evening, Ajay. Well, over the next 60 minutes, we bring you the detailed analysis of various issues concerning your wallets. Yes, we'll be discussing budget and taxation. And to discuss the various aspects of budget and taxation, we have with us Mr. Vaid Jain. He's an expert on taxation. Along with him is Rahul Garg from PricewaterhouseCoopers. He's an expert on corporate tax. And joining us from Mumbai is Prashant Deshpande, also from PricewaterhouseCoopers, and he's an expert on indirect taxes. In fact, the issue that I think the biggest issue that is coming out of there is broadening the tax net. Mr. Jain, I'll come to you on that question of broadening the tax net. As far as right now the situation is concerned, just 2.5 crore people have the burden of the entire tax net. So your take on that? So I don't think that the tax net is too small for India. You may consider it from the angle that looking to the other country, the tax net is so small. But try to consider that India is a developing country. Though there may be many people who are not paying taxes, there can be still more people who can be brought to tax net. But we should not try to compare it with other countries. I think I can give an example. In the US, we compare that 40% people that are taxpayers. But you consider the per capita GDP, per capita income the people are having, there is $31,000. And the income exempt not liable for taxes is around $7,000. Now visualize the situation, every American is earning $7,000. Probably 100% taxpayer should be there, but still they have 40%. Now compare in India. We have a per capita income of rupees 31,000 only, and still we have 2.5 crore rupees taxpayer. And now the basic exemption is 1 lakh rupees. Consider, visualize the situation, every Indian is earning rupees 31,000 rupees, there will not be any single taxpayer. Though I will agree that there is a large scope, many people who are not filing tax return. That's why the finance minister has come out with a scheme of annual information return, etc., where he says every one person should file, get this type of information from where they can get hold of the people who are earning more and not paying taxes. Right. लेकिन जैन साहब, आप इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि जिसमें 2.5 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स का जीडीपी में योगदान है, हमारा एक विकासशील देश है और इस विकास की पूरी प्रक्रिया में हर आम खास का एक योगदान होना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं सभी को इस पूरे विकास की प्रक्रिया में सहयोग देना चाहेंगे? आपसे एक कमेंट। नहीं, I will fully agree with you that everyone should pay taxes, but the issue and how much they should pay, looking to the tax structure which we are having in this country. The presently, as on date, if you look at the total capital GDP, so you know how from where the income is coming is in India. Out of the GDP, roughly 23% GDP is coming from the agriculture sector, and that sector is 60% of the total population. Right. No, not 60% population gets out, and with 23% GDP. So that we cannot ignore when we working out the statistics of the taxpayer. Right. तो जो आपने बात की उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर भी आपसे जानना जैन साहब, 17% केवल योगदान है अगर हम टैक्स जीडीपी रेशियो की बात करें। OECD कंट्री की अगर हम बात करते हैं, जिनकी हम तुलना करते हैं, अमेरिका से तो नहीं, OECD कंट्री से करते हैं, तो 39% जो उनका डेटा है 39% कहते हैं। फैक्ट्स के आधार पर हम कह सकते हैं ना कि टैक्स का जीडीपी में योगदान अब भी काफी कम है, मात्र 17%। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज की डेट में टैक्स जीडीपी रेशियो इंडिया में कम है, लेकिन आप OECD से कंपेयर नहीं कर सकते। अभी आपने वीडियो क्लिप दिखाई टीवी पे, एक आम आदमी को एक बेसिक एग्जम्पशन मिलती है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, एक आदमी की 1 लाख रुपए तक इनकम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। जैसे इंडिया विल बिकम रिचर, इंडिविजुअल विल बिकम रिचर, द कैपेसिटी टू पे टैक्स इंक्रीजेस। आज मेरी इनकम 5 लाख रुपए, आई कैन पे टैक्सेस। मेरी इनकम 50,000 में टैक्स नहीं दे सकता हूं। तो ये मानना कि हिंदुस्तान की 60% जनता एक ऐसे दायरे से है जो इस दायरे से बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नजदीक नहीं है। 30% के करीब डाटा हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो तो कहीं कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। आप उनसे सोचिए कि टैक्स जीडीपी रेशियो में वो कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी तरह की सर्विस सीखा है, वर्किंग आए। दैट इज वाई मेरा ये कहना है कि आप इस डाटा को इसलिए कंपेयर मत करिए, लेकिन जैसे राहुल ने कहा, वी नीड टू स्ट्रेंथन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोग इस टैक्स दायरे में हो सकते हैं या नहीं है, उनको हमें कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो एरिया आज की डेट में छुटे हुए उनको कवर करने की बात है। जो आपने रूरल रिच की बात की है एग्रीकल्चर के बारे में, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बहुत लोगों का मानना है कि एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर देना चाहिए, लेकिन उसको टैक्स करने से पहले एक एनालिसिस जरूर होना चाहिए कि वेदर एग्रीकल्चर में हमारा टैक्स कितना आएगा
जब मैंने कहा कि आज की डेट में 60% जनता हिंदुस्तान की उस पर 22% जीडीपी टोटल आता है, और एवरेज आउट करें तो कितना टैक्स आएगा। तो हमारा सजेशन है कि आप पहले कॉर्पोरेट में जो एग्रीकल्चर इनकम आती है उसको टैक्स कर दीजिए, Right. उसके बाद वी कैन विजुअलाइज कि और बाकी लोगों को टैक्स Right, so we'll discuss the corporate tax structures, but right after this very short break, there's lots more coming up on budget expectations, so keep watching. Now, Mr. Jain, as far as tax brackets are concerned, there is talk of the exemptable limit being raised from 1 lakh to 1.5 lakhs. Do you see anything major happening on that front? देखिए, but I believe is when we are talking about the budget means there are two sides. One is receipts and payments. We have been talking that this year there is unprecedented receipts biden. That does not mean that the finance minister would like to project next year that my receipt should go down. What he will try to balance it. We were like just looking at these clips that we want that there is ATI exemption should be increased, tax rate should be reduced, income limit should be increased. I believe in a budget exercise, a balancing exercise will be carried out. The finance minister, when he will like to give some concession, at the same time he will like to withdraw. I compare budget like a person who makes a budget for his family. Every household lady wants how much money his husband brings and how much she is able to spend. She expects that my income should go up, husband should earn more, and that's why she can spend more. Same is with the finance minister. He will like to work it out how much income he can generate and how much he can spend money for the country's development and country's growth. Looking to that aspect, now looking to the good growth in the tax rate, tax receipts, I believe the finance minister, in case to carry out an exercise, he may tinker with some basics exemptions, increase exemption, but at the same time, he will withdraw all those exemptions which are available to this, I think, corporate sectors. Some exemption has to be withdrawn when some tax rates have to be reduced. That I believe. Right. जी बिल्कुल। अगर फिर भी आप ये तो मानेंगे जैन साहब की जो हम प्रत्यक्ष करों की बात करते हैं तो सभी की ये मंशा है कि जो टैक्स ब्रैकेट है, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो कॉर्पोरेट पे जो टैक्स लगता है उससे ज्यादा एक आम आदमी टैक्स देता है? नहीं, लेकिन आज की सिनेरियो में ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि अब इंडिविजुअल की भी काफ़ी ग्रोथ इस समय टैक्स रेट में इस साल में आई है जी। देखिए, इंडिविजुअल के केस में 30% का मैक्सिमम टैक्स रेट लगता है और जो सरचार्ज और सेस मिलाने के बाद 33.66% आता है। सेम टैक्स रेट आज की डेट में कॉर्पोरेट के ऊपर है, लेकिन उनको छूट भी है, उनको कई रियायतें भी हैं, उनको कई रियायतें हैं, इसमें दो राय नहीं है। पे आ जाता है। हाँ, इनमें कई रियायतें हैं। उनकी इनकम बहुत सारे की एग्जम्प्ट हैं, जो आज की डेट में कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में काम करते हैं, पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, उत्तरांचल वगैरह में उनकी इनकम एग्जम्प्ट है। शायद ये एक इनकम टैक्स ओवर ए पीरियड एक टूल यूज किया गया है टू गिव एन ओवरऑल ग्रोथ टू द नेशन. Certain area which have been left behind, they are being taken care of by giving this exemption. Incentives are given, but ultimately it helps the society. I do agree with that. Taking into consideration, that's why there is an expectation in this budget. Probably some restructuring of the slab may be done, which the finance minister has done 2 years back. लेकिन जैन साहब, अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ ब्लॉक है वो ये सोचता है कि एफबीटी अगर हमने लगाया है तो बिल्कुल सही है, इसलिए क्योंकि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स आता है कॉर्पोरेट पे वो फिर से मैं वही दोहरा रहा हूँ कि 17% आता है। 33% हर बार वो बात करते हैं कि नहीं 30 से जाके 33% हमारा पड़ता है, लेकिन जो भी उनको रियायतें मिलती हैं एक्साइज, कस्टम्स और कुल मिलाकर के अगर आप इस बार नजर डालें तो 80,000 करोड़ का एक तरह से नुकसान होने वाला है वित्त मंत्रालय को, जो रियायतों को लेकर के। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, R&D की बात करें, जो भी टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं सब्सिडी के तौर पर उद्योग जगत को, जो इफेक्टिव टैक्स आता है मात्र 17% आता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि आम आदमी को उससे ज्यादा टैक्स लग रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि उनकी लॉबिंग बहुत अच्छी है इसलिए वो इस तरह नहीं, मैं इसमें एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये बताना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि इतना टैक्स का एग्जेम्पशन दिया या टैक्स का लॉस हुआ, देन द प्रिजम्पशन इज कि अगर ये टैक्स इंसेंटिव नहीं होता तो वो इन्वेस्टमेंट होता, वो कैपिटल होती और वो इनकम जनरेट होती। दैट एजम्पशन वी नीड टू टेस्ट मच मोर रिग्रेसली। अगर आप आज की डेट में कहें कि आईटी सेक्टर में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होती तब भी ये इतना ही ग्रो करता, मेरा ख्याल शायद इतना ग्रो नहीं करता, बहुत कम ग्रो करता। एंड देयरफॉर अगर आज की डेट में आईटी सेक्टर से $5 बिलियन के टैक्स कलेक्ट होता तो आप ये कहते हैं मेरे को $5 बिलियन का लॉस हो गया। $5 बिलियन का लॉस नहीं हुआ, आपको लॉस तो शायद उतने का हुआ जितना ग्रोथ होती अगर ये एग्जेम्पशन और ये facility नहीं दी जाती। Right, gentlemen, we'll continue this discussion further. Mr. Jain, you wanted to respond to that. We'll just get back to you after this very short break. Lots more coming up on budget expectations, so keep watching. But Ajay, as far as service tax is concerned, the problem I face is every time I go to a restaurant, I pay the service tax and I don't know whether the tip is included in it or not. And on that note, नहीं, आपको फिर उसके बाद जो सेल्फ सर्विस देते हैं वहां जाना चाहिए, बैंक मैकडोनल्ड्स में जाना चाहिए, आप कैफे कॉफी डे में मत जाइए ना। Right, indeed. On that note, let's go to our guest in Bombay. On the issue of service taxes, don't you think that ultimately it comes down to the common man who has to bear the burden for the service tax? And in the forthcoming budget, do you expect the tax net for service tax to be widened?
जी बिल्कुल। जैन साहब, अगर सर्विस टैक्स की बात करें तो हम ऐसा कहा जा रहा है कि एक सर्विस टैक्स बहुत ज़्यादा योगदान देता है चूँकि जीडीपी में, और इतना ज़्यादा चंक 34,500 सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए एक अलग से कानून ही आ जाना चाहिए। लेकिन फिर हम दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की तरफ बढ़ने वाले हैं, अगले 3 सालों में ऐसा संभव हो सकता है। आपकी क्या राय है? देखिए, वो 3 साल की बात है, और इस समय जैसे सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ाया है 94 से, जो आपकी फिगर देखिए 400 करोड़ से अब 34,500 करोड़ है, और इतना बड़ा एक्ट अब दायरा होने के बाद एक अपना आप में एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो सर्विस टैक्स पेयर है जिसके ऊपर ये लागू होता है उसको सर्टेनिटी नज़र आए कि क्या प्रोविजन है, क्या है। जो मैं समझता हूँ आज की डेट में सर्विस टैक्स बाय एंड लार्ज बहुत सारे सर्कुलर से और नोटिफिकेशन से गवर्न होता है। इतने बड़े कंट्री में और इतना बड़ा सर्विस की कलेक्शन हो, एक एक्ट बन जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे इश्यूज हैं वो एड्रेस हो जाएंगे, प्रिंसिपल बेस्ड हो जाएगा, लॉजिक बेस्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टाइम एंड अगेन हम नोटिफिकेशन निकालते हैं और उसके बेस पे सर्विस टैक्स को बढ़ा देंगे। दायरा बहुत बड़ा है। और जो आपका दूसरा सवाल है कि 54% आज की डेट में जीडीपी में सर्विसेज आती हैं और टैक्स 34,500 करोड़ आ रहा है, आप इसको फिर उस दायरे से मत देखिए कि सर्विसेज सेक्टर एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है। जैसे मैंने कहा, पॉपुलेशन में हर आदमी सर्विस सेक्टर में रेंडर करता है, और वो सर्विस सेक्टर में वो आदमी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ ही सर्विसेज सर्विस टैक्स में लायबल होती हैं। और 54% की सर्विसेज में जो सर्विसेज शामिल हैं उनमें से कितने % सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता है, वही उसी के ऊपर आप निकालिए कि कितना लगता है सर्विस टैक्स का दायरा लगता है। दैट विल बी कैलकुलेशन। जैसा अगर आम आदमी की बात करें तो जब भी आपने देखा है कि जब भी कोई नया टैक्स आता है या टैक्स में बढ़ोतरी होती है तो उसका सीधा असर महंगाई पे पड़ता है। आप भी इस बात को मानेंगे। तो आपको लगता नहीं कि नई सर्विस टैक्स में अगर बढ़ोतरी, जैसा कि मुंबई से हमारे एक्सपर्ट कर रहे थे कि हो सकता है टैक्स स्लैब में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो, पीडब्ल्यूसी ने हमेशा से कहा है कि शायद उसको 12 से 14% किया जाना चाहिए, क्योंकि वो मर्ज करना है जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जाकर के एक ही कर की बात हो रही है। आपको नहीं लगता इन्फ्लेशन जो एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो? देखिए, वो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो एसिमुलेशन करने की बात वित्त मंत्री जी कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी इसी कंसिडरेशन पे शायद उन्होंने 10 से 12% इसको किया था। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो साथ में एक्साइज ड्यूटी को भी 16 से 14% पे लाना पड़ेगा। अब मेरा मानना ऐसा है कि अगर जब ये एक्सरसाइज कैरी आउट की जाएगी तो एक्साइज ड्यूटी में भी रिडक्शन आएगी, और इसी वजह से आप देखेंगे फिगर्स, एक्साइज ड्यूटी में ग्रोथ नहीं आ रही है, सर्विस टैक्स में ग्रोथ आ रही है। Right. On that, Jan, as far as tax reforms are concerned, now there are schemes like the voluntary disclosure scheme. Do these schemes actually help, or do they in fact encourage things like black money? I don't think the voluntary disclosure scheme is a part of a tax reforms. Tax reform means something else. It is part of mobilizing the additional resources. I don't think that voluntary disclosure scheme should be encouraged, and finance minister will take that step in return. आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से। लेकिन आपको लगता है शेयर बाजार में एसटीटी पे कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं कि वित्त मंत्री के प्रेरोगेटिव है, बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आप लेकिन जैसे जिस ढंग से नहीं, हाँ, वित्त मंत्री को राय दी जाती है, प्री बजट मेमोरेंडम भी सबमिट किए जाते हैं, लेकिन जिस ढंग से शेयर मार्केट में बूम आ रहा है, ये एसटीटी का आप देखेंगे कि 2004 में वित्त मंत्री जी ने शुरू किया था, एक बहुत नॉमिनल अमाउंट लगाया, 33% इंक्रीज की उन्होंने 2005 में, और फिर 25% इंक्रीज की उन्होंने 2004 में, तो काफ़ी इंक्रीज उन्होंने पिछले दिनों में कर दी है। कारण क्या है कि जिस समय उन्होंने सोचा था कि एसटीटी लेना है तो इनकम बहुत नॉमिनल आती थी। एक शेयर में आज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो अगले साल आपके 110 से 115 रुपये होते थे, और वो 100 रुपये के 200 रुपये हो गए। तो वित्त मंत्री जी शायद ये सोच रहे हैं कि मैंने तो इनसे टैक्स 10 रुपये के कैलकुलेशन में सोचा था, ये 100 रुपये की अर्निंग हो गई है, तो उस देखते हुए शायद हो सकता है कुछ टिंकरिंग करें। लेकिन 2 सालों से काफ़ी चेंज की हैं, तो ऐसा नहीं, वित्त मंत्री ये भी ध्यान में रखेंगे कि मैं हर साल एसटीटी को नहीं बढ़ा दूं, तो ये भी एक उनके मन में बात हो सकती है। बिल्कुल, टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो रही है, और मैं दोनों लोगों से जानना चाहूँगा कि वित्त मंत्री की कोशिश यही है कि जो फिस्कल FRBM टारगेट्स हैं उनको प्राप्त किया जाए, इस बार रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट हो, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट प्राप्त किया जाए। ऐसे में उनकी ये मजबूरी है कि टैक्सेस को बढ़ाया जाए, टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए और ज़्यादा कर की उगाही की जाए। क्या रास्ता नजर आता है? नहीं, किस रास्ते के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, आज की डेट में फिस्कल डेफिसिट उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है जी, FRBM में उनकी वर्किंग ठीक चल रही है। एक ही सिग्नल जो है जो उनको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, और जो आप आजकल अखबार में पढ़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ गया है, 6.72 हो गया, आज शायद 6.6 से थोड़ा सा नॉमिनल इसमें डिक्लाइन आया है। उस बात को देखते हुए इस बजट में काफ़ी फोकस वित्त मंत्री जी का रहेगा कि वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें, और इसीलिए उन्होंने शायद ये समझा वर्किंग की जा रही थी कि शायद वो सर्विस टैक्स की जो बात कर रहे थे, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रही थी, वित्त मंत्री शायद उसको यूज करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। to put in development. Right, Mr. Jain, you wanted to respond to that? See, the issue is what for we are collecting tax. We are collecting 30% tax. Thus, this tax does not include the government should take care of the education, the government should take care of health,
Now that year, the 2004, the finance minister put up a case, we want to provide a better education, primary education, and that's why I want to put 2%. Now we will start health cess, and tomorrow you will start some insurance cess, you will say hygiene cess. So where we will end up? Ultimately, this 30% tax is also a tax for providing these services to take care of that government takes care of the common man. That's why Mr. Rahul is right that how much a common man will pay the taxes. That's given. So that way you can increase one by one the 2% for health, 2% for education, 2% for some other things. I don't see that could be the good idea for the finance. ये भी देखा है कि जो पूरे अगर कर संग्रह की बात करें तो लगभग 40% तक उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन साथ में जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है सरकार का वो भी दोगुना हो गया है, 7% से बढ़ करके 14% हो गया। ऐसे में बहुत ज़्यादा क्लीन वो एक तरह से शेव होने वाली है दोनों ही कलेक्शंस में और एक्सपेंडिचर में। तो ऐसे में आपकी बात भी और आप दोनों लोगों की बात वित्त मंत्री बड़े ध्यान से सुनते हैं, ये पता है सभी को। आप लोगों ने क्या सजेस्ट किया है? हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो कैसे पूरे टैक्स रिजीम को सिंप्लीफाई किया जिससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशान ना होने पड़े। उस फॉर्म की अभी हम बात करेंगे जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलने वाली है। क्या क्या राय आपने वित्त मंत्री को जी है जिससे कि टैक्स रिजीम सरल हो सके? देखिए, जब सलाह दी जाती है वित्त मंत्री जी को तो दोनों साइड से सलाह दी जाती है। पहले वो सलाह दी जाती है कि जहाँ पे हम टैक्स के लूप होल समझते हैं, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं, जैसे कि आप टीवी पर भी पहले देख रहे थे कि कुछ लोगों का मानना है कि कुछ को ज़्यादा टैक्स लगता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उन वर्किंग को एड्रेस किया जाए, उन इशू को एड्रेस किया जाए। एट द सेम टाइम हम ये भी सलाह कर देते हैं वित्त मंत्री जी को कि लोगों को ये परेशानियाँ आ रही हैं, उन परेशानियों को एड्रेस किया जाए। अब आप एक टैक्स रिफॉर्म की बात कर रहे थे, रिफंड के बारे में, और जैसे आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिफंड के बारे में, मैं कभी कभी अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ, जब आप रेलवे के टिकट काउंटर पे जाते हैं टिकट कैंसिल कराने के लिए, तो आप टिकट देते हैं तो आपको रिफंड इमीडिएटली मिलता है। इनकम टैक्स में आप रिटर्न भरते हैं और आज कंप्यूटराइजेशन हो गया, मैं नहीं समझता कि वो रिफंड आपको इमीडिएटली क्यों नहीं मिल सकता। आपने सारा एविडेंस दे दिया, चालान लगा कर दे दिए, प्रोसेस करिए अपने कंप्यूटर पे, आपने डाटा दे दिया, डिपार्टमेंट के पास सारा डाटा है, तो वाई नॉट वो पेमेंट आपको 24 घंटे में या 48 घंटे में आपके पास आ सकती है टैक्स रिफॉर्म के बारे में। ऐसा मुझे नहीं लगता। दोनों तरह के सुझाव वित्त मंत्री जी को दिए जाते हैं। एक आपने शायद सवाल बीच में पूछा था और उसमें शायद अब छोड़ के फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के बारे में, उसके बारे में भी बहुत सुझाव दिए जाते हैं कि आज की डेट में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो लास्ट ईयर लगा है, 2 साल से लगा है, उसको कैसे उसको सुधारा जा सकता है। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए कि जैसे लोगों पर लगा, उस बारे में वर्किंग के काफ़ी सुझाव आते हैं। जैन साहब, अगर आपसे संक्षिप्त में जानना चाहें कि क्या मिल सकता है, वही सवाल फिर से कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें राहत मिल सकती है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें बोझ बढ़ सकता है? And what do you expect to get more expensive and what do you expect to get cheaper? जी, What I expect from this budget is that there will be certain concession, but they will be linked with certain withdrawal of concession. As I earlier told, if the finance minister is able to mobilize that courage and confidence, which I believe, that he withdraws certain exemptions which are now being availed by particular industries, then expect that some concession may come in the tax rate. Maybe surcharge is withdrawn or tax rates is lowered, looking to the ASEAN countries tax level which we were discussing. Then I can expect some concession to the salaried employees by way of restoring standard deduction which was withdrawn 2 years back. So I am hoping that finance minister may oblige that one. And another concession which I think we need to address is the finance minister is conscious that India needs a large amount of funds for the infrastructure developments. So there may be a particular concession for the infrastructure development. Investing those infrastructure bonds or something may be an over and above what we are presently getting, some concession may come up. I look forward to that. Budget will be a very progressive budget and which will be addressing the needs of the public at large and particularly the inflation which I believe. वैसे आप बताना नहीं चाहते कि क्या सस्ता होगा क्या महंगा। फिलहाल आपने उद्योग जगत की बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैन साहब, आपका भी शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। आज आपने उद्योग जगत की बात की है। हम वादा करते हैं कल हम उद्योग जगत की सारी परेशानियों को लेकर के आपसे मुखातिब होंगे और कल जब हम 7:30 बजे आपसे मिलेंगे तब हम बात करेंगे क्या कुछ उम्मीदें हैं उद्योग जगत की इस बजट 2007 से लेकर। Absolutely, we'll be discussing budget industry. Mr. Vajan, thank you so much for coming. Mr. Garg also thank you so much for coming. Mr. Deshpande from Mumbai, thank you for joining us. Tomorrow at 7:30 again, we'll be discussing budget and industry and also a little bit of inflation thrown in the middle. So that is all there tomorrow at 7:30. Do join us. नमस्कार। Namaskar.